السلام علیکم۔ کراس فائر ایپیسوڈ نمبر 3۔ طاہر البتہ معمول کے مطابق صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے، ناقابل برداشت۔ اس روز جب وہ کرنل صاحب کے ساتھ ایک سرحدی ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے وہاں موصول ہونے والا اطلاع کے بعد قدرے افسوس اور غصے کے لہجے میں بڑی آہستگی سے کہا۔ طاہر خاموش رہا کیونکہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ وہ اپنا مشن مکمل کر کے آج ہی واپس آیا تھا۔ رات ایک سرحدی پوسٹ پر بسر کرنے کے بعد صبح سویرے یہاں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں کرنل صاحب حسب سابق اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ 2-3 منٹ تک وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ نوشی کرتے رہے۔ طاہر ان کی عادت سے اب تک واقف ہو چکا تھا۔ جب بھی کرنل صاحب نے کسی فیصلے پر پہنچنا ہوتا وہ اسی طرح اٹھ کر سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلتے رہتے، جس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ کر پرسکون ہو کر بیٹھ جاتے۔ طاہر نے محسوس کیا تھا عام حالات میں کرنل صاحب سگریٹ نوشی بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن ایسی صورت میں مسلسل سگریٹ سلگائے رکھتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ طاہر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل تھے اور اس سے معمول کی باتیں کر رہے تھے، اس کے مشن سے متعلق تفصیلات طلب کر رہے تھے۔ میرے خیال سے اب تم ایک ماہ مکمل آرام کرو، کیونکہ اس مرتبہ کا کام اہم اور قدرے مشکل بھی ہوگا، بالآخر انہوں نے کہہ دیا۔ طاہر سمجھ نہ سکا کیونکہ اصولاً اسے چند روز بعد واپس چلے جانا تھا۔ ابھی اس کا مشن نامکمل تھا اور اس کا ایک ہی حصہ مکمل ہوا تھا، لیکن وہ کوئی سوال پوچھنے کا موجز نہیں تھا۔ اس بزنس کا پہلا اور حتمی اصول یہی تھا کہ یہی احکامات پر عمل کیا جائے اور اس حد تک ہی تفصیلات طلب کی جائیں جس حد تک ضروری ہوں، یا پھر متعلقہ بس جس حد تک بتانا ضروری سمجھے۔ کرنل صاحب نے اس سے چند روز بعد ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ چند روز اگلے 10 روز پر پھیل گئے۔ 11ویں روز اسے کرنل صاحب کی طرف سے ملاقات کا پیغام ملا تو وہ قدرے مطمئن ہوا۔ ابھی تک اس کا تجسس قائم تھا۔ کرنل صاحب سے اس کی اگلی ملاقات بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ ان کے سامنے 2 اور سینئر آفیسران تھے جنہوں نے اسے SSB سے متعلق بریفنگ دی اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسپیشل سروس بیورو اور بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیوں میں اپنی نوعیت اور حیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ایجنسی ہے، جن کا قیام صرف اور صرف پاکستان میں تباہی پھیلانے والے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ پاکستانی سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر یہ لوگ موجود رہتے ہیں اور ہر لمحے تباہی کے کسی نہ کسی منصوبے پر عمل پیرا۔ یہ گمراہ اور بھٹکے نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں پھنساتے اور پھر انہیں تباہ کاری کی تربیت دے کے اپنے ہاں بربادی پھیلانے کے لیے لانچ کرتے تھے۔ ایک سینئر آفیسر دیوار پر لگے ایک نقشے پر مختلف جگہ چھڑی رکھ کر نشاندہی کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے اس نقشے پر SSB کے مختلف تربیتی کیمپس، ان کے طریقہ کار، ان کی قوت اور ان کے طریقہ وار سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ یہ لوگ بھارتی انٹیلی ایجنسی کی کریم ہوتے تھے، اپنے اپنے شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ عموماً ان کا خطاب بھارتی SSB اسپیشل سروس بیورو کمانڈر میں سے کیا جاتا ہے اور یہ
तहरीर कारी के ना सिर्फ माहिर होते हैं बल्कि अपने फ़न में इख्तरा करते रहते हैं। यही वजह है कि वो एक दफ़ा नए हथियारों के साथ हमलावर होते हैं। हम अभी इनकी साबका तरीका वारदात का तौर तलाश कर रहे हैं और वो कोई नई तबाहकारी की तकनीक अपना लेते हैं। इसने चंद थनाई के लिए रुक कर सिगरेट सुलगाया, फिर सामने दीवार पर लगे नक्शे पर अपनी छड़ी की नोक एक जगह रख कर ताहिर से मुखातिब हुआ। ये है डेरा जोन। भारतीय फ़ौज अफसरान की तरबियत का मशहूर ज़माना सैंडहर्स्ट कॉलेज भी यहाँ मौजूद है। ये रास्ता जो कतरे पहाड़ी और जंगलात से ढका है बटूरी की तरफ जाता है। देहरादून से मसूरी की तरफ जाने वाली सड़क पर यह कैंप आता है। इससे कुछ फासले पर चकराता कैंप मौजूद है। बटूरी कैंप देहरादून के शुमाल में है। बटूरी और चकराता के दरमियान बामुश्किल 10-12 किलोमीटर का फासला है। बटूरी कैंप हाल ही में बनाया गया है, जिसे एक ब्रिगेडियर मल्होत्रा चला रहा है, जिसकी मदद के लिए भारतीय कमांडो की 2 कंपनियां मौजूद हैं। ब्रिगेडियर मल्होत्रा को राह का ख़ुसूसी ताउन हासिल है। भारतीय फ़ौज के बेहतरीन इंस्ट्रक्टर जो अपने फ़न पर अबूल रखते हैं, इनकी टीम में शामिल हैं। यहाँ खालिस तबाहकारी की तालीम दी जाती है। ये कहना बेजा न होगा, यहाँ दहशतगर्दी को एक आर्ट की तरह पढ़ाया और सिखाया जाता है। यहाँ वही एजेंट लाए जाते हैं जो अपनी वहशत की इंतहा को छोड़ रहे हैं, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तुम इसे रोमन अखाड़ा भी कह सकते हो। यहाँ के इंस्ट्रक्टर जानबूझकर ऐसे मौक़ा पैदा करते हैं जो एजेंटों को वहाँ ज़ेर तरबियत हों, आपस में वहाशाना जंग पर आमादा करें। इनमें से एक अमूमन अपनी कोई ना कोई हड्डी तरवा लेता है। इसने बराह रास्त ताहिर की आंखों में झांका, फिर कर्नल साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया। यहाँ एक दूसरे का खून बहाने की मुकम्मल आज़ादी है। असल में ये सब तौर तरीके इन्हें इंसान से दरिंदा बनाने के लिए अख्तियार किए जाते हैं। ब्रिगेड मल्होत्रा की कोशिश होती है कि यहाँ से निकलने वाला कोई भी एजेंट मुकम्मल दरिंदा बन जाए। जो लोग हमारे मुल्क में स्कूलों के बच्चों को बम धमाकों से उड़ा रहे हैं, अमाम बारगाहों में हत्या और बेगुनाह इंसानों का बेदरेग खून बहा रहा है, मासूम बच्चों को अगवा करने के बाद बेरहम अंदाज से इनके जिस्म के अंग काट कर मार रहे हैं, वो सब इसी ब्रिगेडियर मल्होत्रा की तरबियत याफ्ता हैं। ये सब SSB और बटूरी कैंप से तरबियत याफ्ता हैं। इसने इस कैंप से मुतल्लिक ऐसे रोह फरसाद वाक़यात सुनाए थे, अब ताहिर को घिन सी आने लगी थी। अपनी बात मुकम्मल करने के लिए वो इत्मीनान से इनके पहलू में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। अचानक ही कर्नल साहब खड़े हो गए। तुम्हें तुम्हारी एक साथी सलीम के साथ इस कैंप में लॉन्च किया जा रहा है। तुम्हारा ये साथी जो तुम्हारी देर बाद तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारी तरह अपने फ़न में ताक और बहादुर है। ताहिर बेटे, इस कैंप को बर्बाद करके रख दो, इसे तहस नहस कर दो। यही एक तरीका है दुश्मनों को मस्बत जवाब देने का। इसे बताने का यही एक तरीका है कि हम अपनी कौम सलामती और सलमियत के दुश्मनों का आखिरी हद तक ताक़ुब करते हैं। इस वक्त जब तक हमारी बर्बादी का ख्वाब देखने वालों को हम बर्बाद न कर के रख दें। उन्होंने अपनी बात कहकर जवाब तलब नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं तैयार हूँ सर। ताहिर ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किए बगैर बड़ी मजबूत और पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया। कर्नल साहब ने तहसीन आमेज़ नज़रों से इसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गए अपने सीने से लगा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें जहन्नम में झोंकने वाली बात है, लेकिन किसी न किसी को इस आग का ईंधन बनना ही है।
तभी ये आग ठंडी होगी, तभी ये आग बुझ पाएगी। उन्होंने अलग होते हुए कहा। एक मर्तबा फिर वही सीनियर ऑफिसर इसके जहन में पैदा होने वाले मुख्तलिफ खदशात और सवालात के जवाबात दे रहा था। इसी असना में कैप्टन साहब ने कमरे में दाखिल होकर शायद किसी नए मेहमान की आमद की इत्तला दी। कर्नल साहब ने असबात में सर हिला दिया और दूसरे ही लम्हे सलीम मुस्कुराता हुआ कैप्टन साहब की मौत में अंदर दाखिल हुआ। ताहिर ने पहली ही नज़र में इसे पहचान लिया था। ये तो आबिद है। करीबन 1 साल पहले दोनों भारत में एक मिशन के दौरान एक दूसरे से मिले थे, तब इसका नाम आबिद था। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तब इसका नाम भी अब्बास था। यहाँ नाम तो हर दूसरे रोज़ बदल जाते हैं। कभी कभी इन्हें अपना असली नाम भी इस चक्कर में भूल जाया करता था। बहरहाल अब नहीं, एक दूसरे को ताहिर और सलीम के नाम से ही शनाख्त करना था। सलीम ने बड़ी गर्मजोशी और इससे मुनाका किया और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उम्मीद है तुम दोनों माजी की तरह मुस्तकबिल में बेहतरीन दोस्त साबित होगे। कर्नल साहब ने इनकी मुस्कुराहटों में हिस्सा डाला। क्यों नहीं सर। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा, अपने मखसूस अंदाज में कहा। कमरे में एक वक्त तीनों मौजूद थे, बाकी लोग बाहर चले गए थे। कर्नल साहब और इन दोनों के सामने चाय की प्यालियाँ धरी थीं और सलीम से बता रहा था कि वो ताहिर को किस कवर के साथ एसएसबी के इस घर तक ले जाने में कामयाब होगा। ताहिर जानता था जिस तरह भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने डबल एजेंटों का जाल यहाँ बिछा रखा है, इस तरह ये लोग भी दुश्मनों की चाल से बाखबर रहने के लिए अपने एजेंटों को भारतीय इंटेलिजेंस में भी दाखिल कर देते थे। सलीम ने 2 साल की मेहनत शका के बाद दुश्मन का इतना एतमाद हासिल कर लिया था। अब इसे अपने मुल्क से रंग रोड भर्ती करके भारतीय कैंपों तक पहुंचाने की इजाज़त मिल गई थी। इसने एसएसबी तक राह के ज़रिए रसाई हासिल की थी और एक मुल्क दुश्मन लसानी तंजीम की रुकनीत हासिल करने के बाद इसके सरगर्म मेंबर की हैसियत से अपने आप को मुतारिफ करवाया था। ये बड़ी जान जोखों का काम था। इस खेल में दुश्मन को मामूली सा शक गुजरने का मतलब सिवाय मौत के और कुछ ना था। ताहिर ने इसके संगीनी का और एक रखता था। गोका इनका काम ही मौत की आंखों में आंखें ढाल कर ज़िंदगी बसर करना था और वो हर लम्हा तलवार की धार पर ही चला करते थे। लेकिन यहाँ कम अज़ कम इन्हें दुश्मन के बाखबर होने की सूरत में भागने के यकसा मौके तो हासिल थे, जबकि डबल एजेंट के खेल में ऐसा नहीं था। वहाँ तो वो हर लम्हे दुश्मन की गिरफ्त में होते थे। मामूली चक गुजरने पर इन्हें बेनाम मौत मिल सकती थी। तकरीबकारी इन तरबियती मराकिज़ में जाने वाले किसी भी ग्रुप के मुकम्मल नौजवान खुशकिस्मती से ही लौटा करते थे। अमूमन इनमें एक आद को ज़रूर मार दिया जाता था। इस तरह वो लोग दोहरे मकासद हासिल करते थे। बज़ औक़ात वो किसी शक के बाद महूज़ ज़र-ख़रीद एजेंटों पर दबाव बढ़ाने के लिए इनके एक साथी को इनकी नज़रों के सामने अज़ीज़ें दे कर इनके इसलिए हलाक कर देते थे। वो फ़रार या गद्दारी की सूरत में अपने अंजाम से डरते रहे और आंखें बंद करके अपने आकाओं के अहकामात की तामील करते रहे, जबकि दूसरी तरफ मरने वालों के साथी इसलिए मुत्तमिन रहते थे कि इनके हलकों में अब कोई मंजर बाकी नहीं रहा। वो खुद अपने किसी भी साथी पर मामूली सा शक गुजरने पर इसे मौत के घाट उतार दिया करते थे ताकि बाकी सब लोग महफूज रहें। चूहे और बिल्ली के इस खेल को भारतीय
इंटेलिजेंस बड़ी कामयाबी से खेल रही थी। सलीम ने इन लोगों का एतमाद हासिल कर लिया था, क्योंकि इनके अहकामात पर वो अब तक 2 कामयाब धमाके कर चुका था। ये अलग बात है कि ये धमाके खुद साख्ता थे, लेकिन कमाल ये था कि भारतीय इंटेलिजेंस के नज़दीक वो इसकी कामयाब तरीन कार्रवाइयाँ थीं, जिनके नतीजे भी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही बरामद होते थे। इसने ताहिर का ग़ैबाना तारुफ़ एक मफ़रूर इश्तिहारी स्टूडेंट लीडर की हैसियत से करवाया था। अपने आकाओं को बताया था कि इसने ताहिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब वो इसके हुक्म पर कुएं में छलांग लगाने से भी दरेख नहीं करेगा। इसने ताहिर को ग़ैबाना तारुफ़ इंतकाम की आग में झुलसते एक बागी की हैसियत से करवाया था, जो अपने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह करने पर तुला हुआ था और अपने इंतकाम के चक्कर में सब कुछ जला कर राख कर देने का आज़म रखता था। कर्नल भाटिया को इसने ताहिर का तारुफ़ इतना बढ़ चढ़ कर करवाया कि इसने फ़ौरन ही ताहिर की भर्ती के लिए इसे ओके सिग्नल दे दिया था, और सलीम ने इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने कर्नल भाटिया की तवक्का से ज़्यादा एडवांस की डिमांड कर दी थी, जिससे कर्नल का यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया था। पैसों की पर्दा मत करना, हमें इधर पंजाब में 3-4 काम के लौंडे चाहिए, मेरा मतलब समझते हो ना तुम। कर्नल ने इसके सामने अपने पिस्तौल का चैम्बर लोड करते हुए कहा। सलीम इस वार्निंग का मतलब बहुत अच्छी तरह समझता था। इसने दिल ही दिल में एक बड़ी सी गाली कर्नल को दी और खून के खून पी कर रह गया। सर, मैं बड़ा मुहतात आदमी हूँ। अभी तक मेरे बचे रहने का राज भी यही है। मैंने आज तक कोई एजेंट भर्ती नहीं किया। अब भी बहुत सोच समझ कर और देखभाल कर इस गेम में हाथ डाला है। सर, आपको हीरा दे रहा हूँ। आज तक ऐसा सुरमा किसी माँ ने नहीं जना। साले ने एक ही मुकाबले में 3 पुलिस वाले मार दिए थे। बस इसकी एक ही कमज़ोरी है, पैसा। इसे पैसा चाहिए। औरत और शराब से तो यूं भागता है, बस कुछ ना पूछिए। इसने कर्नल भाटिया को अपने चरबे ज़बानी से आखिर अच्छी तरह शीशे में उतार लिया था। इस फ़न में वो बहुत माहिर था। कर्नल भाटिया का इश्तियाक इसने इतना बढ़ाया कि अब वो सलीम से तकाज़ा कर रहा था कि वो जितनी जल्द मुमकिन हो सके इसे भारत ले आए। कर्नल भाटिया को पंजाब में ऐसे 3-4 लड़कों की अशद ज़रूरत थी। अब वो 2-3 कामयाब धमाके इधर करवा देता तो इसके खंडों पर ब्रिगेडियर के स्टार लगने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर मल्होत्रा जैसे गधे को इन लोगों ने ब्रिगेडियर बना दिया है तो इसे क्यों नहीं। वो बहरहाल मल्होत्रा से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का रिकॉर्ड रखता है। सितम बलाए सितम। क्या अब इसे इस कैंप में भी मल्होत्रा के डिप्टी की हैसियत से खिदमत अंजाम देना थी। ऑल राइट मल्होत्रा, देख लूँगा तुम्हें भी, इसने दिल ही दिल में कहा। और हाँ, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है। अचानक ही वो सलीम से सरगोशी में मुखातिब हुआ। सर, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, मैं ब्रिगेडियर साहब को इसकी हवा भी नहीं लगने दूंगा। इसने कर्नल भाटिया का अंधिया भांप लिया था। वेल, अगर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। कर्नल ने घनी मोचों के पीछे से दांतों की नुमाइश की। वो कम अज़ कम ये तो हरगिज़ नहीं चाहता था कि इस 2 टके के मसले को
بھارتی فوج کے دو افسران کی معاصرانہ چشمک کا احساس بھی ہونے پائے۔ ایز یو وش سر، جیسی آپ کی خواہش۔ سلیم نے چاپلوسی کے انداز میں دانت نکال دیے۔ کرنل نے اسے اس مرتبہ بطور خاصا بڑا ٹریٹ دیا تھا اور روانگی پر اس کی ڈیمانڈ کردہ کھلی رقم اسے نقدی کی صورت میں تھما دی تھی۔ حالانکہ یہاں اصول یہی تھا کہ آدھی رقم ایڈوانس اور آدھی رقم کام ہونے کے بعد دی جاتی تھی، لیکن کرنل بھٹیا نے اس سے بے پناہ امیدیں وابستہ کر لی اور اب تمام اصول اور ضوابط جہنم میں جھونک کر اس کو خوش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یوں بھی اس کے پاس لوٹانے کے لیے خاصی رقم موجود تھی۔